وفی شدت اخذلو، اور سختی میں میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. اور پھر رو کر کہتے ہیں مولا ان ریحی لنتن، میرے پسینہ جو ہے یہ بڑا بدبودار ہے. وحسبی للئیم، اور میرا جو نسب ہے وہ بڑا گھٹیا اور کمینہ ہے. ولونی لاسود، اور میرا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے. اور پھر ایک عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے. فتنفس علیہ، فتنفس علیہ، ایک خوشبودار سانس میرے اوپر لے لیں. یعنی تنفسہ کیسے ہوتے ہیں؟ سانس لینا. کیونکہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ایک ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کی طرف جاتی ہے. یعنی یہ جب سانس لیتے ہیں تو اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن لفظوں کا انتخاب دیکھیں، یہ ہے وہ معرفت کی منزل، یہ ہے وہ عرفان کی منزل پر فائز کہ اپنے مولا سے کس طرح بات کرتے ہیں. فتنفس علیہ، میرے اوپر بھی ایک سانس آپ کا پڑ جائے ہاں فی الجنہ. اور کیا ہو؟ لیطیب ریحی، تاکہ میرے پسینہ خوشبودار ہو جائے. وَلِيَشْرُفَ نَسَبِي، اور میرا نسب اعلیٰ بن جائے. وَيَبْيَضَّ لَوْنِي، اور میرا رنگ سفید ہو جائے. عزادارو، کریم کے گھر سے سوال تھا، کیسے سوال رد ہوتا؟ جون میدان میں گئے، زمین پر گرے. دو غلام ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، ایک جون ہے ایک غلام ترکی ہیں. دونوں کی لاش پر مولا پہنچے ہیں اور ان کے منہ پر منہ رکھ کے، اور جب انہوں نے یہ حالت دیکھی ہے تو وہ کھلکھلا اٹھے ہیں. جناب جون کی لاش پر آئے ہیں. جناب جون کی لاش پر جب آئے ہیں، لاش کو اٹھایا ہے، اپنے گودی میں رکھا ہے. اور مولا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہم بیض وجہہ، اے اللہ اس کا چہرہ نورانی کر دے. کہتے ہیں اسی وقت سیاہی سفیدی میں بدل گئی. اور پھر فرماتے ہیں طیب ریحہ، اس کے پسینے کی خوشبو ایسی قرار دے دے کہ پورا کربلا مہک اٹھے. اور اسی وقت یہ جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو آنے لگ گئی. اور پھر فرمایا وحشرہ مع الابرار فی الجنہ، انہیں جنت میں ابرار کے ساتھ محشور فرما. اور آگے مولا نے جملہ فرمایا وَأَرِّف بین محمد و آل محمد، اور اے اللہ قیامت کے دن جب بلایا جائے جون کو تو جون کو جون کر کے نہ بلایا جائے بلکہ محمد و آل محمد کی فرد کر کے بلایا جائے. جون نے کہا تھا نا کہ میرا نسب شریف ہو جائے، مولا نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. کیونکہ وہاں پکارا جائے گا ہر شخص کو کسی کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اور قسمت والے ہی ہوں گے، اور وہی ہوں گے جو محب علی ہوں گے کہ جن کو باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. اور ان سے بڑے خوش قسمت ہوں گے جن کو اپنے باپ دادا کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا یہ آل محمد کے فرد ہیں، یہ آل محمد کے فرد ہیں. انہی میں یہ ایک جون ہیں. عزادارو، حسین رہ گئے تنہا. فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. وہ یہی وقت ہوگا کہ جب مولا حسین اکیلے ہیں، کوئی نہیں رہا. عسکر کی قربانی بھی دے چکے ہیں. جب مولا استغاثہ بلند کر رہے تھے خیام میں، کئی دفعہ 2-3 دفعہ آپ نے خیام سے وداع کیا ہے، اور بڑا مشکل وداع ہے جو مولا نے خیام سے کیا ہے. پہلی دفعہ آپ آئے ہیں، ابھی آپ نے جنگ شروع نہیں کی، کیونکہ اب مولا حسین نے جنگ کا آغاز کرنا ہے اور قوت حیدریہ کا مظاہرہ کرنا ہے. بلکہ یوں کہوں مولا حسین نے کربلا میں قدرت الہیہ کا مظاہرہ کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ انہوں نے جو اختیار کیا وہ اپنی مرضی سے کیا، یہ مجبور نہ تھے، یہ مجبور نہ تھے، کبھی بھی مجبور.
मौला आए हैं, आकर अपने पर्देदारों को वद्दा अयालहु व अमरहुम बिस्सब्र व लब्सिल उज़ुर व क़ाल इस्तइद्दू लिल बला। मौला पहले विदा के लिए आए हैं, अपने अयाल से विदा किया है, व अमरहुम बिस्सब्र, और उनको सब्र की तलकीन की है, और सब्र के साथ साथ व लब्सिल उज़ुर, सफर का लिबास पहनने का हुक्म दिया है। क्योंकि एक लिबास है जो ख्वातीन घरों में पहनती हैं, एक वो लिबास होता है जो सफ़र के लिए पहना जाता है। क्योंकि जब मौला हुसैन अकेले रह गए हैं, खेमे के अंदर आए हैं, सारा बीबियों ने घेरे में ले लिया है, और बीबियाँ पूछती हैं कि मौला अब हमारा क्या बनेगा, हमारे पर्दे का क्या बनेगा, हमारी जानों का क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें मदीने की तरफ वापस पलटा दें, ये सब अशकिया हैं। तो यहाँ पर मौला ने उन्हें मुस्तकबिल के बारे में बताया है, और वो तो शब आशूरा अपनी बहन ज़ैनब को तन्हाई में बैठकर पूरे सफ़र के हालात बताए हैं। कभी अपनी बहन की बाजुओं का बोसा लेते थे, और बहन अपने भाई की गर्दन का बोसा लेती थी। एक हिस्सा शब आशूरा का इसीलिए था कि एक बड़ी जिम्मेदारी जनाब ज़ैनब पर आने वाली थी। इमाम वक्त ने वो सब बताया कि किस मरहले पर क्या करना है, क्या कहना है, और कैसे गुफ्तगू करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। और यहाँ पर ये एक अमूमी गुफ्तगू है। हुक्म दिया कि वो लिबास पहन लो, और उसके बाद फरमाते हैं वस्तइद्दु लिल बला, इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। और फिर फरमाते हैं क्योंकि सारी परेशान थी, वअलमु अन्नल्लाह हामीकुम व हाफिजुकुम, और घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारा हामी भी है, अल्लाह तुम्हारा हाफिज भी है। अरबी के अल्फाज हैं, दो लफ्ज मौला ने इस्तेमाल किए हैं। हिमायत का लफ्ज वो होता है मुतअल्लिकात की हिफाजत, और हिफाजत का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है जान की हिफाजत। यानी मौला ये खबर दे रहे हैं कि ये जो कुछ आपने ये पहन लिया है, ये तुमसे कोई उतार नहीं सकेगा, लिजा तुम्हारा ये पर्दा भी महफूज रहेगा, और हाफिजुकुम, तुम्हारी जानें भी महफूज रहेंगी। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हामी भी है, तुम्हारा नासिर भी है। व युअज़्ज़िबु अदुव्वकुम बिअनवाइल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मन को मुख्तलिफ किस्म के अजाब देगा। और फिर फरमाते हैं कि वयुअव्विज़ुकुम अन हादिहिल बलिया बिअनवाइन निअम वल करामा, और ये जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ रही है, इस मुसीबत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें करामतें देगा, तुम्हें नेमतें देगा। वसयुनजीकुम अन शर्रिल आदा, और मैं हुसैन तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इन दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। और ये यही वजह है कि अगर किसी ने किसी बीवी के तरफ हाथ बढ़ाया तो रिवायात में है उसका हाथ वहीं पर टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और ऐसे मनाजिर करबला से कूफा और कूफा से शाम और खुद यजीद के दरबार में भी होते रहे। अज़ादारों, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलविदा किया, और दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बच्ची का नाम रुकैया है, एक बच्ची का नाम सुकैना है। दोनों ने आपकी अबा के नीचे अपने आप को छुपाया हुआ है, और दोनों अपने बाबा की पाँव से लिपटी हुई हैं। अब मौला हरकत करना चाहते हैं और देखते हैं कि कोई चीज़ है, बैठ जाते हैं। एक बेटी को इस हाथ पे लेते हैं, एक बेटी को इस हाथ पे लेते हैं, दोनों को सीने से लगाते हैं, कहते हैं कि बेटियों सब्र करो, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि बहन ज़ैनब मेरी इन बेटियों का ख़ास ख्याल रखना, और ये मेरी रुकैया जो 2.5-3 साल की है, आप शाम गए हैं, जनाब रुकैया की मज़ार आपने देखी है, और जनाब सकीना की उम्र भी 6-7 साल थी, उनकी मज़ार भी आपने शाम में देखी है।
इन बीवियों को मौला ने बोसे दिए, इनको सीने से लगाया और इनको अलविदा किया। और छोटी बच्चियां बाबा से बहुत प्यार करती हैं, और बीवी सकीना तो इतना बाबा से प्यार करती थी कि बाबा के सीना पर सोती थी, और इसलिए प्यार का नाम ही सकीना था। निजाबाद ने लिखा है कि बीबी का असली नाम तो फातिमा था, लेकिन प्यार से सकीना कहते थे कि आपका असली नाम ही लोगों को याद नहीं रहा। अजादारों दोनों बेटियों को भी अलविदा किया, और अब आ गए हैं अपने बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। जब अली ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा को तन्हा देखा तो अली ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा मुझे तलवार भी दें, मुझे असा भी दें, ताकि मैं अपने बाबा से दिफा करूं। और दिफा के लिए जब उठकर चलने लगे तो मौला ने कहा, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, कहाँ जाना चाहते हो? फरमाते हैं, बाबा आप तन्हा नहीं रह गए, न अकबर रहा, न अब्बास रहा, न कासिम रहा, न औन मोहम्मद रहे, न हबीब रहे, न मुस्लिम इब्ने औसजा रहे, क्या मैं आपका दिफा न करूं? मौला ने कहा, या अली अंत हुज्जतुल्लाह बादी, तू तो मेरे बाद हुज्जत खुदा है। अंत अबुल आइम्मा मिन बादी, तू मेरे बाद इमामों का बाप है। अंता इमामी अला शीअती, तू मेरे शियों पर इमाम है। अंत काफिलुल ऐताम, तू यतीमों का सहारा है। तो मुतकफ्फिलुल अरामिला, तू इन राडों का सहारा है। वरात तो हरीमिल्लाह, और ये जो अल्लाह की हुर्मतें हैं, ये जो रसूलुल्लाह के पर्दादार हैं, इनको मदीने वापस ले जाने वाला तू है। अंता वलीयुल्लाह औलिया अला औलियाई, तू मेरे मानने वालों पर अल्लाह का वली है और अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा है। और फिर फरमाते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि जमीन हुज्जत खुदा के बगैर हो, मेरे बाद तू ही हुज्जत खुदा है। और फिर जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन को अपने सीने से लगाया, असरार इमामत अली ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंतकिल किए। अली ज़ैनुल आबिदीन फिर ऋषि के आलम में चले गए। इमाम हुसैन आ गए हैं मैदान में, और फौज अशकिया को खिताब किया है, और खिताब करने के बाद हमला किया है। मौला हुसैन की जो जंग है बड़ी तुलानी, 1 घंटा या 1.5 घंटे की जंग है, और वक्त न होने की वजह से मैं उसे इख्तिसार कर रहा हूँ। फ़कत इतना बताना चाहूँगा कि मकातिल में तादाद लिखी गई है कि मौला हुसैन ने कितने मलाइना को फिन्नार किया, क्योंकि मौला हुसैन की तलवार उन पर चलती थी जिनकी नस्ल से किसी मोमिन ने नहीं होना था। रिवायात में 2000 से लेकर लाख तक की तादाद लिखी गई है, और ये भी रिवायात में है कि मौला ने इतनी जंग लड़ी, मरकज करबला से लेकर नुखैला जो कि 9 मील के फासले पर है, और उधर टुवैरिश तक मौला पहुंचे हैं। और जब दूर तक फौजों को भगाते थे, और फौजों की आखिरी दीवार जो है कूफा के साथ और कूफा की हदूद के साथ जाकर टकराई है, और इब्न ज़ियाद भी इस हालत से घबराया है। और लेकिन जैसा कि एक मनसूबा बंदी के तहत एक जगह बुलंद थी, जहां पर दूर जाने के बाद फिर मौला वापस आते थे ख़याम के करीब, उस बुलंदी पर जाकर कहते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि पर्देदारों को मालूम रहे कि हुसैन अभी जिंदा हैं। अज़ादारों, मौला हुसैन प्यासे हैं। रिवायात में है, वह अतशानुन, वो प्यासे थे, यतलुबुल मा, पानी मांग रहे थे, पानी की तलाश में थे, कि मौला हुसैन ने एक दफ़ा नहर अलकमा का रुख किया, बड़ी जंग लड़ी। जंग लड़ने के बाद नहर का किनारा खाली हुआ। मौला हुसैन अपने घोड़े के साथ पानी में उतरे और पानी हाथों में लिया और घोड़े से कहा, ए घोड़ा, मैं भी प्यासा हूँ, तू भी प्यासा है, पहले तू पानी पी ले। घोड़े ने अपनी बेज़बानी में कहा, मौला ये उम्मत बेवफा है, हम हैवान तो बेवफा नहीं है, मैं उस वक़्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक आप पानी नहीं पिएंगे। अज़ादारों, मौला ने
कष्ट किया या अभी पानी में हाथ डाले ही थे कि इधर से जालिमों ने आवाज दी, ऐ हुसैन तुम पानी पीने में मसरूफ हो, तुम नहर अलकमा में उतर चुके हो, लेकिन इधर फौजें तुम्हारे ख़याम की तरफ बढ़ रही हैं। अज़ादारों, मौला हुसैन ने जब ये जुमले सुने पानी वहीं पर छोड़ दिया और नहर से बाहर आ गए और घोड़े पर सवार होकर ख़याम की तरफ आए। जब ख़याम की तरफ आए हैं तो अब इस हालत में आए हैं कि आप घोड़े पर ही सवार खेमे के अंदर तक आए हैं। और हालत क्या है कि जब खेमे में पहुंचे हैं सारी बहनें जमा हो गई हैं। एक बहन ने बढ़कर घोड़े की रकाब थामी है, घोड़े की बाग पकड़ी है, किसी ने रकाब थामी है और हुसैन अंदर ख़याम के ये दूसरा विदा है कि आप घोड़े से उतरे हैं। घोड़े से उतरने के बाद किसी ने आपकी ज़िरा उतारी है, लेकिन अब जब ज़िरा उतारी है तो पता है ज़िरा की सूरत हाल क्या थी? जिस तरह खार पुष्प में कांटे होते हैं इसी तरह तीर लगे हुए हैं। कोई बीबी आपके जिस्म से तीर निकाल रही है, कोई आपके घोड़े के जिस्म से तीर निकाल रही हैं, कोई आपकी ज़रा को साफ कर रही हैं और यहाँ पर सारी बीबियां रो भी रही हैं और मौला की उस जख्मी हालत को भी देख रही हैं। और मौला ने अपना अमामा उतारा है। जब अमामा उतारते हैं तो वो सारा खून है, क्योंकि एक जालिम ने एक तलवार मारी थी जो मौला के सर पर लगी थी। उस तलवार ने आपके अमामा को भी चीरा था और आपके सर पर जो टोपी थी उसको भी चीरा था, उस खोद को भी। किसी बीबी से मौला ने कहा कि मुझे एक पट्टी दो। मौला ने वो पट्टी लेकर किसी बीबी ने आपके सर पर वो पट्टी बांधी। अब मौला कहते हैं, बहन ज़ैनब मेरे लिए एक ऐसा लिबास लाओ जिस लिबास में कोई रग़बत न रखता हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब बहन को मौला हुसैन ने ये कहा होगा उस दर्दमारी बहन का क्या हाल हुआ होगा। मौला ने ये लिबास मांगा और फिर अलहदा खेमे में चले गए और फिर उस लिबास को भी जगह जगह से फाड़ा और पुराना किया। और उसके बाद मौला ने दूसरा लिबास पहना, फिर तीसरा लिबास पहना। और देखें, जब भी कोई मैदान में जाने के लिए तैयार होता था उसे दूसरे तैयार करते थे। कोई तलवार देता था, कोई ढाल देता था, कोई ज़िरा देता था। आज जब मौला हुसैन तैयार होने लगे हैं तो नजर यमीनन शिमालन, दाएं भी देखा बाएं भी देखा, ना अब्बास है ना अकबर है ना मुस्लिम है ना हबीब है। एक दफा जब इधर देख रहे थे तो बहनों ने कहा, परेशान क्यों होते हो? एक ने घोड़े की बाग पकड़ी, दूसरी ने रिकाब पकड़ी, एक ने आकर मौला को ज़िरा पहनाई, एक ने आकर खोद दी, एक ने उठाकर अपने नाना का अमामा आपके सर पर रखा, एक ने आपकी कमर से कमर बंद बांधा, एक ने आकर आपको तलवार दी। इस शाम से मौला हुसैन को तैयार किया गया। अज़ादारों, अब मौला बैठ गए हैं घोड़े पर, क्योंकि बाहर से फिर आवाजें, ऐसे लगा कि फौजें करीब हैं। मौला ने जल्दी से जाने का इरादा किया, लेकिन इधर घोड़ा हरकत नहीं करता। एक दफा मौला देखते हैं, क्या देखते हैं, छोटी बच्ची है जिसने घोड़े के सुबह को पकड़ा हुआ है। यही कह रही हूँ कि ऐ घोड़ा, मेरे बाबा को मैदान में न ले जा। अगर मेरा बाबा मैदान में चला गया तो मैं किसके सीने पर आराम करूंगी। अज़ादारों, हुसैन घोड़े से उतरे, घोड़े से उतरकर अपनी बेटी को सीने से लगाया, बेटी के सर पे बोसा दिया, प्यार किया और फिर जनाब ज़ैनब के सपुर्द किया। कहा, ज़ैनब इस बेटी का खास ख्याल रखना, क्योंकि असर आशूर अफरा तफरी का आलम होगा। बाकी बच्चों का भी ख्याल रखना, लेकिन मेरी सकीना का खास ख्याल रखना, मेरी सकीना का खास ख्याल रखना। अज़ादारों, मौला हुसैन आ गए मैदान में और ये तीसरा या चौथा हमला था जो आपने फौज अशकिया पर किया और फौजियों की धाड़ें निकल गई। इधर से अल्लाह की आवाज आई, या हबीबी अल हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन, क्या इरादा है, क्या इरादा है? अगर तू चाहता है तो मैं अभी तेरे सारे दुश्मनों को मार दूं।
اور اگر میری ملاقات چاہتا ہے تو پھر لما حاضر کتاب، پھر یہ جنگ کیسی، پھر یہ جنگ کیسی؟ عزادارو، جب اللہ نے اپنے حسین کو بلایا تو حسین نے تلوار نیام میں ڈالی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حسین جھکے ہوئے ہیں، گھوڑے کو اشارہ کیا ہے، گھوڑا اب مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب حسین نے تلوار چلانا بند کر دی ہے، دور دور گئی ہوئی فوجیں پھر جمع ہوئی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا گھوڑا آرام سے آہستہ 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 جا رہا ہے۔ عزاداروں، تھوڑی ہی دور گھوڑا گیا تھا کہ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور پھر حسین پر حملے شروع ہو گئے، حسین پر تیر برسنے شروع ہو گئے، حسین پر تلواریں برسنا شروع ہو گئی، گرز کے وار شروع ہو گئے۔ عزاداروں، ایک نے آ کر آپ کی پیشانی پہ وار کیا، ایک نے ایک 3 پھل والا تیر حسین کی سینے کا نشانہ باندھا، حسین کے سینے میں آ کر تیر لگا، تیر حسین کی پشت سے نکل گیا۔ حسین نے اپنی گھوڑے کی زین پر ہی دونوں گھٹنوں میں اس تیر کو لے کر اس زور سے کھینچا اور اسے جسم سے باہر پھینکا، خون کا پرنالہ بن کے باہر نکلا۔ مولا حسین نے خون ہاتھوں میں لیا، خون ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا۔ زیارت میں بھی ہے کہ یہ ایسا خون تھا کہ اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ اترا، اور اس کے بعد حسین نے وہ خون اپنے سر پر ملا، اپنی داڑھی کو خضاب کیا، کہا اسی رنگ میں میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، اسی شکل میں میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔ عزادار، گھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور چاروں طرف سے حسین پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک ظالم نے آ کر حسین کے دائیں کندھے پر وار کیا، حسین کا دائیں کندھا زخمی ہوا۔ ایک نے آ کر حسین کے بائیں کندھے پر وار کیا، حسین کا بائیں کندھا زخمی ہوا۔ ایک تیر آ کر حسین کی پیشانی میں لگا، حسین کی پیشانی زخمی ہوئی، حسین کا امامہ گلے میں آ گیا۔ عزاداروں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، شبیہ پیغمبر سمجھ کر اجر رسالت دے رہے ہیں، مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جو لوگ کربلا میں گئے ہیں وہاں ایک مقام ہے جس کو مقام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ حسین پہلی دفعہ، نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، حسین نماز عصر ادا کرنے کے لیے پہلی دفعہ جو گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جس کو مقام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا سفر حسین نے پیدل کیا ہے، یہاں پر حسین نے نماز عصر ادا کی ہے، لیکن کس حال میں ادا کی ہے کہ حسین کے جسم سے خون بہ رہا تھا، حسین کا جسم تیروں سے پر تھا۔ اس منظر کو امام زمانہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے دادے پر جو نہ سینے ذوالجلال پر تھے، زمین کربلا پر تھے۔ عزاداروں، سمجھ گئے ہوں گے حسین کہاں تھے جب حسین کو ہر طرف سے مارا جا رہا تھا۔ کسی نے آ کر حسین کی پشت پر گرز مارا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، حسین زمین پر آنا چاہتے ہیں لیکن حسین کے جسم کو تیروں کی نوکوں نے، نیزوں کی انیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حسین زمین پر اترے ہیں لیکن زمین پر آتے آتے زمین اور حسین کے جسم کے درمیان تیروں اور نیزوں نے لے لی ہے۔ حسین کا جسم، زہرا کے بیٹے کا جسم آہستہ آہستہ، اسی منظر کو اجڑی ماں بھی دیکھ رہی تھی جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ عزادار، آہستہ آہستہ حسین پہنچے کربلا کی زمین پر، اپنے رب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد
अब हुसैन ने खैमे का रुख किया है। हुसैन चाहते थे कि मक्तल और खैमे के दरमियान ज्यादा फासला न रहे, ताकि मेरी बहन को देखने में और इस मंजर को देखने में तकलीफ ना हो। अज़ादारों, आप तल्ले ज़ैनबिया पर गए हैं। आखिरी कनात जो ख़ियाम हुसैनी की थी वो तल्ला ज़ैनबिया थी, और जहां पर खैमे अभी बने हुए हैं ये वो मरकज था जहां पर्देदारों के खैमे थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी है, देखें कि मेरे भाई की क्या हालत है, क्योंकि अब भाई की आवाज नहीं आ रही। अब वो जंग का शोर खत्म हो गया है। अब परेशान होकर बीवी आगे बढ़ी है। इधर हुसैन ने मक्तल तक पहुंचने के लिए जो करबला में गए हैं उन्होंने देखा है कि मक्तल और कमरे में है, हुसैन दफन और जगह पर हुए हैं। बस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर मकाम साहिब उस जमान को देखें और फिर इस मक्तल को देखें तो ये काफी फासला है। यहाँ पर आते आते पता नहीं मौला ने कितने सजदे दिए हैं। मौला के हाथ में तलवार है, थोड़ी दूर चलते हैं अपने रब का सजदा देते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वला मिल्लत रसूलिल्लाह, फिर उठते हैं, फिर कभी घुटनों के बल चलते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हुसैन आगे बढ़ हुसैन अपनी मियादगाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अज़ादार, हुसैन को मक्तल तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। घोड़ा भी साथ साथ है। घोड़ा ने बेज़बानी में कहा, मौला बड़ी तकलीफ हो रही है चलने में, जगह जगह आपको सजदा करना पड़ता है, मैं अभी जमीन पर लेट जाता हूँ। ये जो घोड़े को गोडी लगवाते हैं और उसे जमीन पर लेटाते हैं, असल ये वो आखिरी मंजर है कि जब घोड़ा लेट गया था और घोड़े ने कहा था, मौला अब और तो कुछ नहीं हो सकता, अकबर तो मौजूद नहीं है, मैं आपके करीब लेटा हूँ, अपने आप को मशीन के करीब ले आओ, मैं आपको उठा लूंगा, उठा के मैं खैमों में पहुंचा दूंगा। अज़ादार, उस वक्त मौला ने घोड़े से कहा कि अब तू जब सीन मेरे करीब ले आया, अपना खून आलूद अमामा उतार के सीन पे रख दिया। इसलिए हम जुलजना की सीन पर जो अमामा रखते हैं वो रंगीन होता है। अपनी तलवार घोड़े की जीन से लगा दी, अपने हथियार उसके साथ सजा दिए और भी जो तबर्रुकात थे वो लगा दिए। कहा, घोड़ा मेरा तो कोई नहीं रहा, जब मैं मारा जाऊंगा तो मेरी बहनों को कौन जाकर मेरी मौत की खबर देगा, बस तू इंतजार में रहना, जब मैं मारा जाऊं तो मेरे मरने की खबर, मौत की सुनानी तुम खैमों में ले जाना। अज़ादारों, मौला हुसैन पहुंच गए अपनी मक्तल में, यहाँ पर अल्लाह का सजदा दिया है। अज़ादारों, यही मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा है। बीबी ज़ैनब आ गई है तल्ला ज़ैनबिया पर। तल्ला ज़ैनबिया पर पहुंचकर आखिरी कोशिश जनाब सैयदा ने की है। फरमाती हैं, या उमर इब्न सअद मलऊन कमीने, अब तंजुर व युक्तल अबू अब्दुल्लाह, तू देख रहा है हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, ज़हरा का बेटा मारा जा रहा है, अमा फीकुम मुस्लिम, तुम में कोई मुसलमान नहीं है जो मेरे हुसैन को बचा ले, तुम में कोई मुसलमान नहीं है जो मेरे हुसैन को बचा ले। अज़ादारों, बड़ी दर्दनाक है कहानी। इधर बीबी ज़ैनब ने ये जुमले कहे, जब कोई जवाब नहीं सुना तो फिर पीछे दौड़ी है अली ज़ैनुल आबिदीन के पास जाने के लिए। और यहाँ पर रिवायात में ये जुमला भी मिलता है, एक तवज्जो दो, थोड़े चंद मिनट और थोड़ी सी इंतजार कर लो कि बड़ी दुखी यूं की मुसीबत है। अज़ादारों, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सन मुबारक 4 या 5 साल का था। रसूलुल्लाह को पता चला बीबी को कि मेरे बाबा को लोगों ने पत्थर मारे हैं, मेरे बाबा की पुश्त पर उजड़ी फेंक दी है। बीबी ने अपनी चादर सर पर की और दौड़े दौड़े मस्जिदुल हराम की तरफ आई और कहा, छोड़ो मेरे बाबा को। वो काफिर थे, काफिर छोड़ के भाग गए।
काफिर छोड़ के भाग गए। यहाँ पर जब जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा अपनी आखिरी कोशिश से नाकाम पलटने लगी तो एक दफा बीबी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मुझे इजाजत है मैं अपने बाबे को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश कर लूं, क्योंकि आप ही ने तो सुनाया था मेरी दादी भी काबा में अपने बाबा को बचाने गई थी और सारे काफिर दौड़ गए थे। बीबी ने कहा बेटी मैं मना तो नहीं करती, लेकिन देखो वो काफिर थे ये मुसलमान है, वो काफिर थे ये मुसलमान है। अज़ादारो अब हुसैन काफी देर से सजदे में है, कोई आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करता। उमर इब्न साद कह रहा है क्या देर कर रहे हो, जल्दी करो गुरूब होने को है, कोई 4 बजे होंगे, कोई क्योंकि रिवायात में है गुरूब से कोई 1.5 या 2 घंटे पहले का ये वाकया है। अज़ादारो जनाब सकीना भी अपने बाबा को बचाने के लिए बढ़ी, इधर अश्कल अश्किया मलून कमीना शिमर भी तलवार लेकर आगे बढ़ा। अज़ादारो मैं तो वो जुमले नहीं पढ़ सकता और न ही मैं पढ़ा करता हूँ कि शिमर ने कैसे आकर हुसैन को ज़िबा के लिए तैयार किया। हाँ बस एक खंजर था, उस खंजर से हुसैन को ज़िबा करना चाहता है। इधर जनाबे सकीना आवाज देती है मेरे बाबा को ज़िबा ना करो, मेरे बाबा को ज़िबा ना करो। अज़ादारो शिमर मलून ने खंजर लिया, खंजर लेकर हुसैन को ज़िबा करना शुरू किया। अली ज़ैनुल आबिदीन यही बात याद करके तो रोते थे कि जब तुम हैवान को ज़िबा करते हो तो छुरी तेज करते हो, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जब मेरे बाबा को ज़िबा किया गया तो किसी ने कुछ खंजर भी तेज न किया। शिमर मलून जसारत कर रहा है। मेरे वीर दीपा की शराफत दा ओ मेरे वीर दीपा की शराफत दा कर चाशमार आयाए जित वल वल तीर चलना है और रसूल दी बोसादा ओ मेरा गाजी वीर मौजूद होना तकु आवे समझाए तकु भैन दे सामने पता लग वंदा होंदा किवें कत्ल फिरा। बीबी ज़ैनब ने जब देखा मेरा कोई चारा नहीं लगता, दौड़ी दौड़ी गई हैं अपने बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन के पास। अली ज़ैनुल आबिदीन का कंधा हिलाया है और फरमाती है बेटा अली उठो, बेटा अली उठो, तेरे बाबे को कत्ल कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। बाबे तेरे को कत्ल कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अज़ादारो बस एक जुमला। अज़ादारो जब अली ज़ैनुल आबिदीन ने ये सुना है तो इतने में जमीन को एक हरकत आई है, जमीन को एक हरकत आई है, सियाह आंधी चली है, सियाह आंधी चली है और सारी बीवियां परेशान हो गई हैं और सब बीवियां परेशान हो गई हैं। इधर अली ज़ैनुल आबिदीन उठे हैं, उठकर खैमा का पर्दा हटाया है, खैमा का पर्दा हटा के कहते हैं अस्सलाम अलैकुम या अबा, मेरा बाबा मेरा आखिरी सलाम आपको। और कहते हैं या अम्मा, पुप्पी अम्मा बाबा को, मेरे बाबा का सर मेरा आज
کبھی